Yes, good morning, Priyanshi. Good morning, sir. So, today we will focus on the looping topics and we will also revise what we have covered yesterday. और लैपटॉप ठीक हो गया आपका? सर वो हो तो गया बट स्टिल थोड़े से इश्यूज हैं उसमें। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो वी आर नॉट इन ए हरी। आप आराम से जो जब भी आपका लैपटॉप पूरी तरह ठीक हो जाता है, सो देन यू गो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आल्सो। Have you purchased the book or not? यस सर। कौन सी बुक की थी भाई? सर सुमित अरोड़ा। ओके ओके, सो ठीक है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो साथ साथ में वट एवर वी आर स्टडिंग इन क्लास। यस, तरनजोत, अवनीत, यस, गुड मॉर्निंग। कैमरा कर लेना बेटा अपना ऑन। तरनजोत, ये बुक बाई कर ली है तूने? हैव यू बॉट द बुक और नॉट? हाँ जी सर। So yesterday we have focused on that is how to add a column, clear, and how to delete a column, how to rename a column. So these are the basic operations that we have that we perform on a data frame. Now still few students have not joined in. Yes, ठीक है, यही है बुक, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और साथ साथ में थ्योरी के साथ पढ़ते रहना इसको साथ साथ में, क्लियर? बिकॉज ये जो पीपीटी है, पीपीटी इज जस्ट हैविंग दी no basic concepts, so elaborated concept you can study from the book also. So before we start the class, so now the resources should be there with you, like the book is there, clear, the software should be there. So when you have the resources, then you can get the main benefits. और syllabus देख लिया सभी ने? have you gone through the syllabus? yes, प्रियांशी, एक बार देखा syllabus? यस सर। Clear? So now a lot of changes are there this time, and we have now more syllabus as compared to the last year. So we have to be now quite regular in the classes, so that we at the end we get the desired result. So I will be just revising the contents, clear, that we have already gone through, that is the row selection, addition and deletion. So रो सिलेक्शन के लिए, कॉलम सिलेक्शन के लिए ये मेथड है हमारे पास, दैट इज दी LOC मेथड भी है, clear? So we'll just copy this content. So moving to the LOC part. So this is the code that we have. For the LOC method.
Oh yes, yes, yes. वंशिका अनम्यूट कर लो बेटा. Clear? So now today we have now changed the mechanism for the class that now we are sending the meeting ID, the changed meeting ID as well as the changed password. So that is the new change that we have brought in. So that's why I was a bit slow, so that you adapt to the change that we have gone through. So basically now we were discussing about this LOC method. So we have one is LOC method and the other is ILOC method. So before we go with this method, first you just see the output of this code is. So first we have just what we have did here, we have just displayed the data frame. Now what our data frame contains, here you can see here the data frame is having two columns. A first column heading is 1, second column heading is 2, and we have entered the elements into the dictionary by using series. This is the first series, this is the second series, and these are the contents. Now what we have did with the LOC method, in LOC method we basically mention the row range and the column range. So let us say now we implement this method. So first हमने क्या mention करना होता है, row range. Like my row range is, let's say starting from column A to column row A to row C. This is the index value of my row starting from A to C, and I can also mention the column range also. So let's say I want to display only the one column, first column only. Clear? So when I run my code, so you can see in the output part only 3 rows are appearing and 1 column is appearing. So that is what we have in the LOC method. LOC method first part contains the rows and the second part contains the second parameter is the about column. Clear? So let's say I want to have first column also as well as the second column also. For this, what I need to do here, first column 1 colon, my second column name is 2. We have already worked this method earlier also. So I only just need to emphasize here again is that is in LOC method we mention in the first parameter we mention the row range, and in the second parameter after comma we mention the column range. So this is about the LOC method. So LOC method में हम row index और column index का use करते हैं. But what we do with the ILOC method? With the ILOC method, no, I stands for integer location. So rather than mentioning the labels like this, we mention the integer value of the rows and columns. So let's say I start with 0 row and I go up to the index value 3, and for column I mention 0 to 1. So I just run this code. So you can see here in the answer part, clear what we are showing. This is the row range in the form of integer values, and this is the column range with regard to the column that we want to display. So the important thing is here is that we start with the index value 0 and we go up to 3. So the 3 is not the part of the output. Clear? 0 is the starting value, but ending value goes up to 2 only. 3 is not included in ILOC. It is included in LOC, but not included in the upper limit is not included in ILOC. Same is the case with the column range.
Now it has included the first column, but it has not included the second column. So the upper bound is not included in the output part in case of ILOC method. So this is the difference between ILOC method and LOC method. So I request everyone, that is Amneet, Aruman, Tarunjot. देखो यार, मेरे को बार बार इस चीज की रेपिटेशन ना करनी पड़ेगी, आप कैमरा ऑन करो यार, क्लियर. So I am not taking a very long class, so try to cooperate with your teacher. So now moving to the next part of this program, of this content is ILOC method that we have already discussed. Now the next is adding rows. So adding rows we have already done, that is how we can append the first frame with the second frame. And another very important method is the deletion of rows. ठीक है, that is how we can delete a particular row of a data frame. Yes, yes, कोई बता सकता है? वंशिका बता सकते हो कैसे डिलीट करते हैं हम any particular row of a data frame? ठीक है, so now let us try with this code. ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है, इस डाटा फ्रेम में फर्स्ट वी विल डिस्प्ले द डाटा फ्रेम. यस वंशिका. Sorry. Yes, Vanshika, now you can participate. सर हमने अपेंड मेथड भी नहीं किया है. हाँ जी, सर अपेंड मेथड भी नहीं किया अभी. चलो कोई बात नहीं, अपेंड भी कर लेते हैं, इसके बाद अपेंड भी कर लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी फोकस ऑन दी ड्रॉप मेथड. अब ड्रॉप मेथड में क्या है हमारे पास? फर्स्ट आई रन दिस कोड. तो इस कोड में क्या है? यू कैन सी दी, दिस इज माय एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम. अब इस डाटा फ्रेम में हाउ मेनी रोज आर देयर? 4 रोज आर देयर. ठीक है, तो मैं लेट से इसमें से फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहता हूं. फर्स्ट रो इज दी रो विद ए रो लेबल ए. तो इसके लिए मेथड है हमारे पास डाटा फ्रेम डॉट, द नेम ऑफ माय मेथड इज ड्रॉप, एंड देन आई विल मेंशनिंग दी रो लेबल. तो रो लेबल कौन सा है मेरा? ए. सो आई जस्ट रन दिस कोड. So you can see in the lower part of the output, now row A has been deleted from the data frame. Clear? So again look at the method. Method क्या है हमारे पास? कैसे? That is this. What is this line of code is there? That is to delete a particular row from a data frame. क्लियर? तो उसके लिए क्या है मेथड? क्या है? फर्स्ट वी नीड ए डाटा फ्रेम डॉट, जो भी फंक्शन हमने यूज करना है. सो ड्रॉप इज द फंक्शन टू डिलीट ए पर्टिकुलर रो, और पेरेंथेसिस में क्या मेंशन करना है? इंडेक्स वैल्यू. जिस भी रो को आप डिलीट करना चाहते हो उसकी इंडेक्स वैल्यू मेंशन करनी है. ठीक है जी, क्लियर है ये ड्रॉप मेथड? सिमिलरली लेट्स से आई वांट टू डिलीट द थर्ड रो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? थर्ड रो की इंडेक्स वैल्यू क्या है? सी. सो आई विल जस्ट रन दिस कोड एंड यू कैन सी हियर इन द आउटपुट, ये मेरे पास जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम था और इसमें से द थर्ड रो हैज बीन डिलीटेड, यू कैन सी. सो यू हैव टू जस्ट मेंशन द पर्टिकुलर रोज इंडेक्स वैल्यू दैट द रो यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द डाटा फ्रेम. सो एज Vanshika has said that we have not focused on the this how to add the rows
क्लियर? बेसिकली इसमें ऐड रो कैसे की हुई है, देखो फर्स्ट हमारे पास एक डाटा फ्रेम 1 है जिसमें वी हैव 2 rows and 2 columns. Similarly we have a data frame 2 with 2 rows and 2 columns, और इनके कॉलम लेबल भी सेम है. No, you can see here the column labels of the first data frame and the column labels of the second data frame both are same. So this is how you can, when you will be adding up, so you will find a the added data frame here. So we will be just copying this code. तो data frame जो 1 है that will get changed. So just run this code and तो ये देखो हमारे पास जो फर्स्ट डाटा फ्रेम था, दिस इज द फर्स्ट डाटा फ्रेम df1 with values 1 2 and 3 4, clear, and the second data frame was 5 6 and 7 8, clear. So these were the values of the second data frame. So second data frame has been added to the first data frame because their column headings are same and no their rows and columns, number of rows and columns, they are also same. And this is how the append operation has been done. Append से होता क्या है? The word meaning of append is to add something at the end. To add something at the end, that is the meaning of append. Clear? Append method इससे पहले हमने कहाँ पे किया था? Yes, Aruman will tell. Aruman इससे पहले append function कहाँ पे किया था? सर 11th में 11th में किया था. किस टॉपिक के साथ किया था? किस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड था? सर पाइथन. पाइथन भी ठीक है, ये भी ठीक है. पाइथन के अंदर कौन सा टॉपिक था? वो नहीं जानता. चलो कोई बात नहीं, अब ये क्वेश्चन इसको शिफ्ट कर देते हैं. पार्शियल आंसर हैज बीन गिवन बाय अरुमन. यस तरनजोत, अपेंड मेथड कहां पे किया था? दसुआ में किया था, टांडा में किया था, मुकेरिया में, हाजीपुर में, तलवाड़ा में? कोई तो बता दो एक ऑप्शन. So the question is shifted to Avneet. Yes, Avneet will answer this one. लिस्ट में सिंपल सी बात है. लिस्ट में एक हमने अपेंड किया था और एक हमने किया था उसके साथ, एक अपेंड के साथ तो हम सिंगल वैल्यू को अटैच करते थे एट द एंड, और अगर मल्टीपल वैल्यू के लिए कौन सा था हमारे पास? एक्सटेंड. वेरी गुड. मैं खुद भूल गया हूं कौन सा दूसरा फंक्शन कौन था. So Avneet has reminded that is the extend method by which we can add multiple values at the end of a list. और अगर लिस्ट के बीच में कोई वैल्यू डालनी है तो उसके लिए कौन सा मेथड था हमारे पास? Yes, anyone can interrupt and answer. Sir, insert. Yes, so insert method was there to add any value inside at the mentioned location inside the list. So that was a bit about the what we have covered in list. So this was about the append in data frame. Now moving to the next part. So this part is very very crucial, that is how to iterate over rows in data frame. ठीक है, जैसे हम लिस्ट के ऊपर लूप का यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी में लूप का यूज कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन यूज फॉर ट्रैवर्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज और ऑफ ए डाटा फ्रेम यूजिंग the certain methods. Now what is this method is? So in this particular slide you can see here, ये नीचे दिखाई दे रहा है ये आपको, for index comma row in data frame 1 dot iter rows. So ये मेरा मेथड है iter rows to basically iterate over the rows in data frame. और भी मेथड है हमारे पास. So today we will focus on this first method, iter rows.
सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज वी हैव इंपोर्टेड द रिक्वायर्ड पैकेज, देन एक हमने ले लिया डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दिया डाटा फ्रेम में विद देयर कॉलम हेडिंग्स, ये कॉलम हेडिंग मेंशन कर दिए उसके, नेम, एज, फेवरेट कलर, ग्रेड। तो ये जो ऑलरेडी जो कीज थी डिक्शनरी को, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने कॉलम हेडिंग के अंदर। और बाद में हमने क्या किया कि एक लूप चला के फॉर इंडेक्स कॉमा रो, ये वेरिएबल कौन से होते हैं आपको पता है फॉर लूप में? यस वंशिका विल टेल। कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल, वेरी गुड। तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं दैट इज इंडेक्स एंड रोज आर माय कंट्रोल वेरिएबल्स इन। और यहाँ पे फॉर लूप में होता है मोस्टली सीक्वेंस होता है, जो हम रेंज से क्रिएट करते थे या लिस्ट मेंशन कर सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस की जहाँ पे सीक्वेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डाटा फ्रेम रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके ऊपर हमने मेथड अप्लाई कर दिया इटर रोज। ये जो दो पैरामीटर हैं इंडेक्स एंड रो, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ दिस मेथड। इटर रोज के ये पार्ट है, ये दोनों वेरिएबल। और इससे मैं आप क्या कर सकता हूं, किसी पर्टिकुलर रो का नेम डिस्प्ले कर सकता हूं और रो का एज डिस्प्ले कर सकता हूं। सो फर्स्ट इसको कॉपी करते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन चीजों को आप साथ साथ में समझ के करोगे, सो देन दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप कुछ चीजें स्किप कर दोगे, सो देन दीज थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट। तो पहले इसको कमेंट कर देते हैं और फर्स्ट वी जो हमारा डाटा फ्रेम है उसको प्रिंट करवा लेते हैं। हमेशा पहले अपना डाटा फ्रेम चेक कर लिया करो कि डाटा फ्रेम बन गया या नहीं बन गया। तो विल जस्ट रन दिस वन एंड तो ये हमारा डाटा फ्रेम है जिसके अंदर क्या है, 2 रोज है हमारे पास। फर्स्ट का कॉलम हेडिंग है नेम, फिर एज, फिर फेवरेट कलर, फिर ग्रेड। दीज आर दी कॉलम हेडिंग्स, सो यू कैन मेंशन दीज आर दी आवर कॉलम हेडिंग्स। और प्रिंट से मैंने अपने डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा लिया। अब सेम चीज, सेम डाटा फ्रेम को मैं प्रिंट करवा रहा हूं, कोई नई एडिशनल जस्ट वेट। Yes, so here we were focusing on in the coding part like this. So this is my data frame with all the basically rows that have been displayed here. But अब मैं इस लूप से क्या करना चाहता हूँ, इस लूप से मैं पर्टिकुलर रो के रो के नेम और एज को डिस्प्ले कर रहा हूँ यूजिंग दिस लूप। सो आई विल जस्ट इसको ऑन कमेंट कर देते हैं
So you can see here in the output part, name is appearing as well as age is also appearing here. ठीक है, अगर लेट से मेरे को रो में से मेरे को लेट से फेवरेट कलर भी चाहिए, so you can see now the favorite color is also appearing in the output. अगर आपको favorite color के साथ you want that age to be also appearing over there, so you can see here the age is also appearing. Clear? So this is about the now my iter rows method. This basically access the values row wise value को ये display कर रहा है, first row, then second row, then third row, then fourth row, like then fifth. और भी methods हैं हमारे पास iteration के लिए, column wise भी है, item wise भी है. So ये हमने first method को discuss किया है, and the rest of the methods we will discuss in our subsequent lectures. ठीक है, तो फिर से आप इसको एक बार देख लो, बिकॉज द लूपिंग वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है जी. सो इन द लूपिंग पार्ट यू कैन सी हियर, जैसे इसकी एज ये चेंज कर देते हैं इसमें 12. ठीक है. नाउ आई वांट टू आस्क, लेट्स से अवनीत से पूछते हैं. अवनीत, डाटा फ्रेम में मेरे पास 2 रोज हैं, अब मैं 3 रोज इसके अंदर 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डालना चाहता हूं. आई वांट टू हैव रिकॉर्ड ऑफ 3 स्टूडेंट्स. तो बताओ मेरे को ये कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा? मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, फ्रेया एंड मोहक. सो आई वांट टू हैव रिकॉर्ड ऑफ 3 स्टूडेंट्स. सर शायद अपेंड यूज करेंगे. पेंड? चलो ठीक है. Yes, now the option moves to Vanshika. Vanshika, question clear है? सर एक बार दोबारा बोल दो क्वेश्चन. क्वेश्चन है, you look at this क्वेश्चन ना. इस क्वेश्चन के अंदर देखो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा है यहाँ पे, फ्रेया का, मोहक का. लेट्स से मैं एक नया स्टूडेंट है जिसका नाम है रमेश. अब मेरे को रमेश का डाटा इसके अंदर डालना है, तो मेरे को कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा? सर कोड में tf1 नेम इज इक्वल टू थर्ड स्टूडेंट का डाटा डालना पड़ेगा. तो df.1 से करेंगे. df.1 से तो कितने आप, उससे तो हम कॉलम तो इजीली ऐड कर सकते हैं, रो कैसे ऐड करेंगे? सर df1 स्क्वायर ब्रैकेट में नेम इज इक्वल टू. अच्छा, गुड. तो चलो एक ट्राई करके देखते हैं आज. नो वट एवर दी वंशिका इज, df1 डॉट, नहीं डॉट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है ना हमने. ऐसे चल जाएगा? शायद. तो 2 वैल्यूज एंटर करके देखते हैं. चलो सारी कर लेते हैं. इसमें क्या, एज इज इक्वल टू लेट्स से 10 एंड df1 बट हम इसके अंदर रो स्पेसिफाई नहीं कर रहे ना. रो किस रो में ये एडिशंस और सब्सट्रैक्शन हो रही हैं बेसिकली? वी आर नॉट मेंशनिंग हियर दी रोज. ये तो हम कॉलम के अगेंस्ट
उस कॉलम के अगेंस्ट एंट्री कर रहे हैं, बट वी आर नॉट मेंशनिंग एनी रोज। तो चलो अभी इसको रहने देते हैं, इस मैकेनिज्म को। ठीक है, और अभी हम सिंपल मेथड से कर लेते हैं एंट्रीज। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूं, सो एक नेम यहीं पे डिक्शनरी में ही ऐड कर लेते हैं। एक नेम ऐड कर लिया, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एज ऐड कर ली हमने, लेट से कलर हमने ऐड कर लिया, और ग्रेड उसके डाल दिए। एंड वी रन दिस कोड। So you can see here a new student has been added, and these are the values that have been no loop से, कैसे loop से भी हम उसको access कर रहे हैं, और विदाउट लूप उसको डाटा फ्रेम से भी एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू बेसिकली मैनिपुलेट विद different ways. What are the different ways of accessing the same thing? ठीक है, तो इनको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करके देखोगे तो ये थ्योरेटिकली धीरे धीरे करके ऐड होता जाएगा। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि चाहे आप डेली जो भी नई चीज कर रहे हैं उसको दूसरे दिन आप प्रैक्टिकली जरूर करके देखो। ठीक है, सो इफ यू विल प्रैक्टिस देन यू विल slowly and steadily you will become very very gelled with these things. अगर हम इनको थ्योरेटिकली करते जाएंगे, सो एट द एंड आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारे आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएंगी सारी चीज। यस वंशिका, क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है। ठीक है, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्रियांशी हैज जॉइंड द क्लासेस अ बिट लेट। तो प्रियांशी बेटा, जो पुराना है थोड़ा सा आप उसको पढ़ो थोड़ा थोड़ा। अगर आपने बुक बाय कर ली है दैट्स ए गुड थिंग। आप जब भी आपका लैपटॉप ठीक हो जाता है तो आप प्रैक्टिकली इन चीजों को करके देखो, बिकॉज क्लास में तो ये क्लैरिटी आ जाती है इन चीज के ऊपर, बट जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे यू विल नॉट फाइंड द कन्विक्शन how you are going to do this. yes, अभी तक जो हमने कवर किया है सिलेबस का, तो इसमें व्हाट इज योर फीडबैक? यस, अवनीत से पूछते हैं। अवनीत, कितना इसमें से आपने प्रैक्टिकली करके देखा है और कितना जस्ट क्लास में बस बैठ के देख रहे हो? सर मैंने वो स्टार्टिंग स्टार्ट किया था तो मेरे काफी हो गए थे, बस अभी थोड़ी ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, गुड। यस, विल टेक ए फीडबैक फ्रॉम अरुमन। सर थोड़े से कोड किए हैं। ठीक है, थोड़े से कोड किए हैं, ये तो ये कॉपी पेस्ट वाला ही है कि जो आंसर दे दिया है उसी का है। ठीक है, मेरे को जितने भी स्टूडेंट है ना आप लोग, तो जब भी जिसका कोड चलता है ना आज से लेके अगले 10 दिन के अंदर, तो मेरे को बस उसकी एक स्नैपशॉट भेज दिया करो, फोटो खींच के। मेरे को नहीं लगता आप ऐसे ही बोलते रहे हो सर चल रहे हैं कोड चल रहे हैं ये बाहर में जब क्लास में आओगे ना आप, तो सर हमें तो ये चीज आती नहीं है, ये चीज। सो हियर इट्स वेरी इजी टू से कि चल रहा है काम। ठीक है, सो प्रियांशी तो अभी ना, शी इज नॉट इन ए स्टेट टू अभी लैपटॉप नहीं है ठीक इसका। और यस, अरुमन वो नहीं आ रहा क्लास में, वीर प्रताप? पता नहीं क्यों। अटेंडिंग मे बी अटेंडिंग दी वो YouTube वाली क्लास जब मैं अपलोड करता हूँ वहां से लगा रहा होगा क्लास। ठीक है, ठीक है, तो इसको साथ साथ में करो। अगर आईपी को सीरियसली करना है तो ओनली मेथड इज, देखो फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो आप लास्ट 15-20 दिन थोड़ा जोर लगा लोगे ना तब भी आप पास हो जाओगे, बट आईपी में ऐसा कुछ नहीं है। ओनली ऑप्शन इज दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। सो विल टेक वन मोर एग्जांपल फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दिस हेड एंड टेल। हेड एंड टेल के ऊपर ऑलरेडी हमने फोकस किया हुआ है। Now we know that head method basically displays the top 5 rows by default, and tail method returns the last 5 rows by default. But हम इसके अंदर n की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 10, 20, 30, 40, whatever the value you want to pass, you can pass.
ठीक है, यू कैन डिस्प्ले दी एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर आप उसके अंदर 10 डालोगे तो 10 टॉप को डिस्प्ले कर देगा, एंड लाइक दिस। सो एक यहां से एग्जांपल ले लेते हैं इसको। यस, वंशिका क्वेश्चन आपके लिए है, बताओ इसमें एरर क्या है, व्हाट इज द एरर इन द कोड? सर प्रिंट डीएफ में पैरेंथेसिस नहीं यूज किया है। ठीक है, इस प्रोग्राम में कुछ भी एडिशनल नहीं है अभी तक तो हमने जस्ट क्या किया है, एक डिक्शनरी क्रिएट की है और इस डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है और उस डाटा फ्रेम को प्रिंट कर लिया। तो कोई नई चीज तो नहीं है इसमें, ठीक है, एवरीथिंग इज द ओल्डर पार्ट। देखो लास्ट में क्या किया है, इसने हेड फंक्शन का यूज करके टॉप 2 रोज को डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो ठीक है, ये देखो पहले क्या है, पहले डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा लिया, फिर उसके बाद हेड फंक्शन का यूज करके टॉप 2 रोज को डिस्प्ले करवा लिया। क्लियर? यहाँ पे आप यू कैन सी हियर हेड 2 मेंशन किया हुआ है, अगर आप हेड को 4 कर दोगे तो यू विल फाइंड दी टॉप 4 रोज ऑफ द डाटा फ्रेम। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे हेड की जगह पे यहाँ पे मैं टेल का यूज करता हूँ, so tail का meaning we know that tail basically takes the values, brings the values from the bottom side, ठीक है। तो you can see here Jack is the last value, Smith is the second last, Steve is the third last, and Win is the fourth last value. So tail method is picking up values from the bottom side, ठीक है जी। तो is there any doubt in this head and tail method? Clear है? So moving to the next slide. So now next slide is again emphasizing on the LOC method. LOC method के ऊपर हमने already focus कर लिया हुआ है. This is one more example, but this is a very interesting example also. कैसे ये interesting example है? तो यस, अवनीत की ड्यूटी लगाते हैं। अवनीत, इसमें मेरे को बताओ प्रोग्राम में नई चीज क्या है, व्हाट इज न्यू इन दिस प्रोग्राम? सर्च करो अच्छी तरह से। सर जो पॉइंट है शायद वो क्या? अच्छी तरह से बताओ, देख स्क्रीन आपके सामने है। देखो इस प्रोग्राम में क्या है, एक मिनट।
सो हेयर यू कैन सी हेयर ये जो numpy वाला जो मेथड है, आवाज आ रही है? ठीक है, सो इन द फोर्थ लाइन ऑफ कोड ये जो numpy का यूज किया हुआ है, np.random.rand मेथड, तो ये मेथड किस लिए है? दिस इज टू क्रिएट द रैंडम नंबर्स। ये numpy के अंदर हमने रैंडम नंबर्स क्रिएट किए हैं। 8 का मीनिंग क्या है? 8 रिप्रेजेंट्स द रोज, 4 रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स। ये देखो इंडेक्स से देखो, वैल्यू काउंट करो इंडेक्स की। इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट द रोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4। तो ये numpy पैकेज में से रैंडम मेथड को यूज करके रैंड एन इतने ये रैंडम नंबर जनरेट किए हैं, और जो रिप्रेजेंट होंगे 8 रोज में और 4 कॉलम्स में रिप्रेजेंट होंगे। ये डाटा फ्रेम मेथड क्लियर है? ठीक है, डाटा फ्रेम मेथड का फर्स्ट पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? डाटा। यस, वेरी गुड। आई कैन शो यू फ्रॉम द स्लाइड आल्सो, शायद आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, ये देखो, ये बॉटम साइड पे क्लियर है ये जो डाटा फ्रेम मेथड है। तो डाटा फ्रेम मेथड का जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है डाटा को। सो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आल्सो। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्या है हमारे पास? ये जो पहला पैरामीटर है ये डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस विल जनरेट 32 वैल्यूज विद 8 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, दूसरा पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडेक्स को। और तीसरा पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम वैल्यू को। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ माय डाटा फ्रेम मेथड। और फिर लास्ट पे हमने क्या किया है? ये LOC मेथड का यूज किया है। LOC मेथड क्या किया है? इसमें हमने कोई रो रेंज स्पेसिफाई नहीं की हुई। रो ऐसे कॉलम का डालने का मतलब होता है कि ना तो हमने रो की स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन की, ना इसकी एंड वैल्यू मेंशन की। सो दिस इज गोइंग टू सिलेक्ट ऑल दी रोज। किसको सिलेक्ट करेगा? सारी रोज को। और कॉलम कितने सिलेक्ट करेगा? 1। क्लियर? 1 कॉलम, जिस कॉलम का नाम क्या है? A। सो आई विल नाउ रन दिस कोड। तो बिफोर यू लुक एट दिस कोड, सबसे पहले हम डाटा फ्रेम को ही देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्लैरिटी नहीं आती हमें। So you can see here the data frame. ठीक है, तो ये डाटा फ्रेम की वैल्यू सारी आ रही है। ABCD, हाउ मेनी रोज आर देयर? 8 रोज आर देयर, 4 कॉलम्स आर देयर। और ये जो वैल्यू आउटपुट में आ रही है वो कहां से आ रही है? रैंडम फंक्शन से। ये रैंडम फंक्शन से जनरेट की हुई वैल्यूज है। क्लियर और नॉट? ठीक है, अब हम अपने LOC मेथड को चेक कर लेते हैं। So now you can see here this LOC method here. ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम की आउटपुट आ रही है। ठीक है, क्लियर है ये इसे? ठीक है, थोड़ा सा जरूर इसको यूज जरूर करके देखो। इफ यू विल नॉट यूज दिस वन, तो पहले क्या है? पहली आउटपुट में पूरा का पूरा डाटा फ्रेम है, दूसरी आउटपुट में सिर्फ एक कॉलम है। अगर मेरे को मल्टीपल कॉलम चाहिए, सो आई विल यूज हियर कॉलम A से लेके मेरे को अगर तक 3 कॉलम चाहिए, A to C, जस्ट रन दिस वन।
So you can see here in the next output, सारी की सारी रोज आ रही हैं और ABC कॉलम आ रहे हैं. Now I ask a question to Avneet कि ये सारे के सारे कॉलम क्यों आ रहे हैं ABCD, so सारी की सारी रोज क्यों आ रही हैं आउटपुट में? कोड से बताओ, कोड से देख के. क्योंकि सर हमने उसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों दिया है कॉलम का. क्योंकि हमने रो के केस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया. ये रो, ये फर्स्ट पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है रो को. कॉलम के केस में तो हमने किया A to C, तो वो A to C सिलेक्ट करेगा कॉलम्स को. रो के केस में हमने मेंशन नहीं किया. अगर मैं रो के केस में यहां पे मेंशन करता, लेट्स से A to let us say E, so now you can see in the output part सिर्फ A से लेके E तक रोज डिस्प्ले हो रही. ठीक है, तो एक बार फिर से ये LOC मेथड पढ़ना. LOC मेथड में दो पार्ट होते हैं, एक होती है रो रेंज, एक होती है कॉलम रेंज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. देखो अब स्टूडेंट कितने रह गए हैं? 3. तो अगले 5 मिनट में स्टूडेंट रह जाएंगे 2, फिर 1, फिर मैं अकेला ही पढ़ाता रहूंगा इधर. सो कोई क्वेश्चन है आपका बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, इनको प्रैक्टिकली जरूर करके देखो साथ साथ. एंड मेरे को जो बड़ी बात ये आ रही है ना कि आप लोगों की डाउट कोई नहीं आ रही, सो दैट्स ए डेंजरस साइन. व्हेन वी डोंट हैव एनी डाउट, सो दैट्स नॉट ए गुड साइन, दैट इज आई थिंक इज ए डेंजरस साइन. वही जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्लियर एंड ऑल क्लियर. सो क्लियर इज ए गुड साइन, ऑल क्लियर इज ए डेंजरस साइन. थैंक यू बेटा, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा.